अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। नशा एक लानत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम का एक बड़ा हिस्सा इस दलदल में फंसा हुआ है। आज यहाँ भी तरह तरह का नशा करने वाले लोग इलाज की गर्ज से आए। कहीं वो अपनी काली करतूतों का जवाब पेश करते नजर आते हैं, तो कहीं अपनी करतूतों पे पछताते नजर आते हैं। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। नशा उधार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, यार डूब जाओ, रहो ना होश में वानो। केड़ा गंदा नशा करके आ गए हो मेरे क्लिनिक दे विच। मैं 2 हफ्तियां दे विच मरीज ठीक कर लेना, तानू 3-3 महीने हो गए ने तुसी ठीक नहीं हो रहे। ऐसे करो, नशा असी गंदा नहीं करते। नशा करके असी गंद करने, लड़ने, झगड़ने, एक दूसरे दे गिरबाल पड़ देने। और की लभदा है तानू इस नशे दे विचों? सिर्फ 2-4 घंटे हवावां छुट के बाद चो फिर वही गर्मी, महंगाई, टैक्सां दा रौला। ओए बिल जमा कराउण दे तुहाडे कोल पैसे नहीं, बच्चे दी साइकिल बेच के तुसी सिगरेट लैंदे हो ते रौला पा लेंदे हो। डॉलर वेखो किथे चढ़ गए। डॉलर जिन्ना मर्जी उत्ते चले जाए जी, साडे तो उत्ते नहीं जा सकदा। क्यों? ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਸੰਦੇ ਹੋ, ਨਸਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਦਾ। अच्छा, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। कमीज ला के ले जांदे ते खैर सी, ओ ते साडी क्या? इकोनॉमी दा ही पट्ठा बिठा गया यार। इकोनॉमी ने बचाता नहीं ते ਅਸੀਂ स्लीपर हो गए सां। ओए ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। यार साडे हत्थां पैरां ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਸੀ। लेकिन ये तो पुत्र का नहीं भी आई बेटा, ये तो आप नौजवान है। ਸ਼ਬਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਝ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਹ ਪਵਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਐ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। क्या हुआ भाई? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ੀ ਜੋ ਬੜੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਅੱਖ ਲੱਗ गई। ਇਧਰ ਆਏ। कमाल है, मरीज आप इस कुर्सियों पे बिठाए हुए हैं, बिस्तर खाली पड़े, उन्हें वहां सुला दें। ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈੱਡ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 2-2 ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਰੋ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ। हाँ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ। लाइन? कौन सी लाइन? ਇਹਨੇ ਨੋ ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ। रेलवे लाइन? ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ। तुम्हें किसने कहा था कि तुम नशे पे लग जाओ? ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਘਟਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Shut up! नहीं मैं कल्ला नहीं, शबाना भी होगी मेरे नाल। मैं लानत भेजती हूँ इस इलाज पर और लानत भेजती हूँ इस गंदे काम पर। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्या? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। तुम्हारा प्लॉटों से क्या ताल्लुक है भाई? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या? मोहतरमा, आपको चोट कैसे लग गई? ये मारता है मुझे। आपको कैसे लगी चोट? ਇਹ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ आपकी रफाकत है कोई? रफाकत है जो है ही नहीं, अजय शादी हुई है सिर्फ। नशा तो रिश्तों का तकद्दुस खा जाता है। आप इस गंदे काम में क्यों पड़ गए? रिश्ता बचाने वास्ते। रिश्ता? जब नशा ना करिए फिर एक दूसरे ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। मतलब आप दोनों को पहले से पता था कि आप दोनों नशा करते हैं? जब मैं नशे में होती हूँ ना, ਹਾਏ ਹਾਏ। तो ये मुझे मेरी जिंदगी लगते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और नशा उतर जाए तो? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ऐसे लगता है सर पे मौत मंडला रही है। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
इतने नाकाबिले बर्दाश्त हैं आप लोग एक दूसरे के लिए, तो क्यों की थी शादी आपने? ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। शट अप। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले तुम दोनों में से कौन नशा करता था? हाँ हाँ मैं आपने शादी के बाद इन्हें भी नशे पे लगा लिया? आहो घर दे जी नशा करते हो ना, अच्छा रहता कि इको मुक्या हुए बंदा दूसरे को तो ले सकता। नहीं, इन्होंने नहीं। हाँ। इनकी हरकतों ने। हरकतों ने? हरकतों ने? मतलब? ये सारी रात पार्टीज में रहते थे। अच्छा झूमती झामती लड़कियां इनको बहुत पसंद थी। अच्छा। मैंने सोचा कि मैं भी नशा करूं तो शायद इनको अच्छी लगने लगूं। और बाजी ये झूठ बोल रही है। ये ब्याह तो पहले भी सूटे खिंचदी रही है। क्या? ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਿਗੜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। जाती हुई है जुटी लुकाई दी रसम की जगह ते मेरा नशा ही लुका लिया उन्होंने। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਨੇਕ ਪਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। खातून, आपने पार्टियों के शौक में अपना घर बर्बाद कर लिया। बस की करिए दी तरबियत ही अच्छी नहीं सी। मुझे जो मर्जी कह लो, मेरे माँ बाप को कोई बात मत करना। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟ, ਓਏ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਾਨਾ। ये देख रहे हो तुसी ए वजह ही उन लाउड कदा ठीक है यार। ਜਾਓ ਇਨਕੇ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? थाने में। ਮਿਕਸ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਖਸ਼ਕਾਸ ਜੀ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? नहीं, क्यों? ਜਿੰਨੀ ਫੜੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਜਕ ਸਤਰੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਲਈ ਅਸੀਂ। डॉक्टर साहब, इस खातून का क्या मसला है? ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਤੂਨ ਹੈ, किताबां लिखदी है, नशे ते लग गई। आप पता नहीं क्या इलाज कर रहे हैं। इन लोगों को माहिर नफ्सियात की जरूरत है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਹਰੇ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। माहिर नफ्सियात नहीं, मुआशियात। हाँ वही देखो ना, डॉलर उठे जा रहे हैं। भूख, अफलास, टैक्सेस की भरमार, अदम तहफ़्फ़ुज़, यार यही वो चीजें हैं जिससे नशा करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ओह ये देखो एक नंबर शाला बदी ਓ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ते ए कौन है क्लब्बा च पियानो बजाने वाला? ये सब ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं घबराईदा नहीं असी, घबराईदा ते उदों जदों ना लभे। कितनी प्यारी शक्लें हैं, इनके अंदर के इंसान से मोहब्बत करो। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। इंसान सिर्फ अंदर नशा लैन जांदा बस। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ। असल इंसान तो इनके अंदर है, जो फ्रस्ट्रेशन परेशानियों से जब का शिकार। इधर करो मुंह अपना। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਓ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਏ ਓਏ, सभी भोले बाले मासूम, इधर 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 चेहरा करें साहब। उधर की कैमरे की आंख देख रही है। अच्छा आप ये बताइए कि नशे में आपको भटकने का खौफ नहीं होता? ਇਹਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ। ताकत, दौलत, शोहरत और खामखा की इज्जत भी तो इंसान को भटका देती है ना। तो ये डॉक्टर कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि सवेर दी वो बोली नहीं, हुण बोली है पहला लफ्ज। इनको आप ऐसी ही बातें करें जिनका वो जवाब दे सके। इनसे ना मजाक करें, ना मुश्किल बातें करें। ओके ओके इनके मसाइल को समझें। जी। आप ये बताएं कि नशे में आपको तन्हा रहने का डर नहीं? Man is alone and dies more alone. तन्हाई और यास तो अटल है, लेकिन इनका मुदावा एक गुना बेखुदी। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਇਹਦੀ। ऐसी बातें मत करें, पढ़ी लिखी लगती हैं, क्रिएटिव हैं। ये बताइए कि नशे में आपके तखय्युल की परवास मसदूद नहीं हो जाती? तखय्युल ने इंसान को दिया ही क्या है? जिस्म की आसाइश, फितरत की आजमाइश और समेटने की ख्वाहिश। ਇਹ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਢੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? और डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਤਾ। ये इलाज है,
वो ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ओहो, यही इनका इलाज है। इनके अंदर के इंसान से प्यार करो, इनको अपना बना लो। बहुत अच्छे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੈ? वे फिटे मुंह तेरा मैं देख देख कलमोई को तुम मैं को छोड़ के इनको नेक्स्ट है। ओ नहीं। तेरी ऐसी नहीं। प्रोफेसर समझा रहे हैं। यार ऐसा बोलो, सारा नशा लाता है। अस्पताल च भी पुलिस आ गई। मेरी जान, खामोश खामोश। मोहतरमा, जिस दलदल में आप धंसी हुई हैं, इससे अपने और पराये का फर्क खत्म नहीं हो जाता। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ अगर लाइन मिल जाए तो 3 केटू चढ़ जाओ। ਲੈ ਕੋਈ ਕੇਟੂ 2 ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ हो गया मैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? ये मैं यही कह रहा हूँ कि अंदर के दुख सुनिए, इनकी परेशानियों का मुदावा कीजिए। दवाइयाँ इनका इलाज नहीं है। यार इन्हें धक्के दे के बाहर कटो यार, खोतियां नु नंबर लाने वाले। मोहतरमा बताइए। अपने और पराये का फर्क नशा नहीं, नीयत खत्म करती है। ਨੀਅਤ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ 22 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। ना ना, जंगीर तरीन के साथ मेरा किसी तरह का कोई इशू नहीं है, और वैसे भी बस यार बंद करना, मैं तेरे नाल बाद कर दूंगा। बैठे रहे सारे देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हेपेटाइटिस का शिकार है, और यहाँ पर जब तक साफ पानी नहीं मिलेगा अवामुन्नास को, मैं नहीं समझता कि लोगों को किसी भी तरह का रिलीफ मिल सकता है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है, खदारा जो आपको खुदा ने तौफीक दी है साफ पानी के लिए मुझे कुछ दे दें। सर ये हेपेटाइटिस की वार्ड नहीं, नशे वालों की वार्ड है। कहाँ आ गए आप? हेपेटाइटिस नशे नहीं ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन से HIV होती है। देखें, HIV हो या LBW हो या एनीथिंग हो, नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मैं ये देखें, नशा जो बंदा करता है, घर में कोई एक आदमी बर्बाद होता है, उसकी जिंदगी खराब होती है। लेकिन जो गंदा पानी है वो पीने से पूरा घर अफेक्ट होता है, सारा कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो हेपेटाइटिस का शिकार है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हास्बे तौफीक जो आपके पास हो आप वो मुझे दे दें प्लीज। मैं कहना तलाशी लवो, मैंने लगता है ना कोट दी जेब च बिल्ली है। लेकिन अच्छा यार, लेकिन ये घबराने की बात नहीं। जैसे खान साहब ने एक बात कही थी कि घबराओ नहीं, अब ये जो मुश्किल वक्त आपके मुल्क पे आता है ये हमेशा नहीं रहना। चेक कर लो, इन्हें तालू ना वाल ते नहीं लगा। नहीं सिर ते नहीं, तालू ते किथे लगना? तालू बत्ती आवे माखी सानी पाकिस्तान हेपेटाइटिस का शिकार है। गवर्नर साहब, साफ पानी की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन इस वक्त ये सारे नशे की लानत में मुब्तला है। हमने मिलजुल कर इनका इलाज करना। देखें, ये नशे को हमें वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है, और 20 करोड़ जिसकी लागत है, 15 किलो हमने पकड़ ली है, और जो बाकी की मांदा रहती है तो हमारी जो हजरात पाउडर को इस्तेमाल करते हैं उनसे ये गुजारिश है कि खदारा एमनेस्टी स्कीम को इस्तेमाल करें और मुल्की खजाने के अंदर जमा कराएं। इससे आपके मुल्क का जो अदारा है वो मजबूत होगा। और हमने देखें इस पे वो क्या है, वो जो इधर रखते हैं नस्वार, वो हमने उस पर तो टैक्स लगा दिया है, और अगर हमने नस्वार पर टैक्स लगाया है तो वो तमाम चीजें जो आपको एक्टिव कर देती हैं और जो मुबैना तौर पर आपको एनर्जेटिक कर देती हैं, जो आपको उकसाती हैं कि चल हम कुछ करके दिखाइए, तो वो जो आप
उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैर खड़के जाके। और ये भी याद रखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहले से ही हेपेटाइटिस का शिकार है। और जब तक नशे से क्या ताल्लुक है? गंदा पानी तो फसाद की जड़ है। कैसे? ये जब साफ पानी नहीं मिलता तो पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं, और जब पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं तो बंदा उसको दूर करने के लिए सिगरेट का इस्तेमाल करता है। फिर थोड़े अरसे बाद इंसान क्योंकि चेंज चाहता है, 2 कदम आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सिगरेट से 2 कदम आगे बढ़ जाता है। अच्छा। यह रास्ता सीधा हेपेटाइटिस की तरफ जाता है। नहीं सर, वो रास्ता नशे की तरफ जाता है। नशे की तरफ जाता है। हमने नशे को खत्म कर देना है, पी के नहीं, पी के नहीं, हमने इस नशे को साड़ दे, नहीं साड़ना भी नहीं, उस पर भी पाबंदी है, लेकिन अब समुद्र में सुट दें, मगर समुद्र में भी नहीं, वो मछलियों को टोन कर सकता है। ये ना हो मछलियां अंडों की जगह पाउडर देना शुरू हो जाए, लेकिन ये हमारा इशू नहीं है। नशा इकट्ठा करके ना एक जगह ते दब दिओ ते सानू दस दिओ किथे दबे है। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਪ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਈ ਉਗਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। क्यों? तुम्हें क्या करना है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਝੱਟ ਆਈਏ। मुझे नशे के लिए इतने पापड़ बेलते हो, मेरे प्यारों, आप सबसे मेरा एक सवाल है, बल्कि साहब आप बताइए कि नशा ना मिलने पर आपको जिल्लत तमीज़ मोहताजी का एहसास नहीं होता? नशा ना होवे ते इंज लगदा जिवें कड़क दी धुप्प च बंदा नंगे पैरी फिर रहा है। पापड़ जी सड़न जलन, आहा, जलता है बदन, जी जलता है बदन। मेरा ख्याल मुंह थानी निच मार देने। जी साहब, पूरा पूरा दिन पड़े रहते हो, वक्त जाया करते हो, वक्त एक कीमती सरमाया है मोहतरमा, वक्त जाया होने का आपको एहसास नहीं होता? इस टाइम नशा नहीं कीता, सानू इंज ही लग रहा है जिवें इमरान खान बोल रहे। वक्त सरमाया नहीं है, एक दरिंदा है जो सबको निगल जाता है। वक्त भी ਉਹਦੇ ਦਰਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। गंदा है पर गंदा है ये। गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। आहा, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, वाह, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मोहतरमा, ऐसा कौन सा दुख है जिसे भुलाने के लिए आप नशा करती हैं? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। वाह भाई वाह, भाई डॉक्टर तने बड़ी शाबाश है भाई, तने तो बड़ी रौनक लगा रखी अस्पताल में। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਵਾਂ ਮੁਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ भाई तै बड़ा अच्छा है भाई। ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ भाई तै बड़ा लाइक है भाई। हाँ थैंक यू। हाँ बड़ा लाइक आदमी तै। क्या कर रहे हैं? तने यहाँ सबको नशे पे लगा रखा है। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਈਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ए टेंशन नशा ना। चुप कर, तभी किसी ने अपने पाँव की मट्टी नहीं जोड़नी यहाँ से। तभी तो वो बेचारे ठीक नहीं हो पा रहे 3-3 महीने से। हाँ, तने पता मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा किया टाइमली एक्शन करके। मैं यहाँ पर आया इसीलिए था। पाकिस्तान एक हेपेटाइटिस का शिकार मुल्क है, जब तक इसका खबरदार नहीं होगा हम आराम से नहीं ना बैठेंगे ना जंगीर तरीन को ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अब तुम सारे लाइन में लग जाओ। आओ सारे लाइन च लग जाओ, जेडी उन्होंने फड़ी है ना बंडन लगे ने। लाइन में तो लगे, लेकिन यह बात याद रखना, जब तक मैं कहता हूँ तरीके इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान का यार बंदा 1 रुपया डिगी जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से राना सनाउल्लाह ने। वेलकम सर। थैंक यू सर, आप इस केस में पकड़े जाएंगे ये तो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत लेट गिरफ्तार किया है, जबकि हमारे जो कलेक्टिव कप्तान हैं, बल्कि कलेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ,
हमारे कलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा। जी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझ पे कोई केस बनाना था जी जी, तो फैसलाबाद का कोई केस डालते, कोई भैंस चोरी का केस डालते, या कोई लूमों में आग लगाने का केस डाल देते, या कोई फीकी जुगत का इल्ज़ाम लगा देते। चलो वो भी होता तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जस्टिफाइड होता। लेकिन ये जिस तरीके से 15 किलो हेरोइन, तो 15 किलो हेरोइन तो है ही नहीं कभी पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो कम से कम 40 किलो की तो दुबली से दुबली हेरोइन भी मैं समझता हूँ। आयशा जी कहाँ हेरोइन है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ऑपोजिशन को एक एक को करके जेल में बंद कर रहे हैं ताकि उनकी हर्डल्स खत्म हो जाए, जो कि खत्म होने वाली नहीं है। आपका मतलब है जो 15 किलो हेरोइन निकली है वो प्लांटेड है? तो दिखाए ना किधर है, बरामद की गई है। वो आयशा को पैकेट 15 किलो का कहाँ दिखाए मीडिया को? मेरी भी सुनो, बात ये है कि न सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ तो आवाम की विक्टिमाइजेशन हो रही है। अवामी नुमाइंदों की चीखें निकल रही हैं। जी सर, हमारे साथ आपकी सियासी हरीफ बैठी हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा। वेलकम आपा। ध्यानदारी से मुझे एक बात बताओ, ये महज इत्तेफाक है या कोई ज़हनी शरारत है तेरी आयशा? मेरी? जब भी तूने मुझे बुलाया किसी सुर के बंदे के साथ नहीं बिठाया। ये पहली दफा नहीं हो रहा, आपा ना कर। आप आइंदा से आपा को किसी सुर मंडल के साथ बिठा दें, खुश रहेंगे। अब इनसे पूछो अच्छे रह गए। बात उतनी करनी चाहिए जितनी इंसान निभा सके, जितनी बारे में हो। इतनी बड़ी बढ़ के मारना, दावे करना और बाद में फिर से मई करना, क्या फायदा? मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जेलों से डरने वाला मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। तो पहले भी हमारे साथ ये कोई नई बात नहीं है। जी जी जी। हमें जेल में पुठा लटका के नीचे बाल्टी रख दी जाती थी, जो हमारे पसीने से बाल्टी भर जाया करती थी, और उससे फिर बना लिया करते थे। ऐसी बातें ना करें राणा साहब, सुनने वाले समझदार हैं। ये कैमरे की आंख आपको देख रही है, सब जानते आप इतने जोगे नहीं। इस तरह हुआ होता है आपसे तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी। और आयशा सुनो मेरी बात जी। आज इनको खान साहब की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि मूंछों से पकड़ के जेल में डालेंगे। हमने तो आयशा बड़ी इज्जत की है इनकी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इनको पुलिस डाले में डाला है, सीट पे बिठाया है। पुलिस वाला बेचारा खुद नीचे बैठा है। इज्जत की बात करती हैं तो जिस डाले में इन्होंने बिठाया था ना उस डाले में कोई टेप रिकॉर्डर था और ना ही उसके अंदर कोई एसी का इंतजाम था। सर, मुल्जिमों के लिए ना तो एसी का इंतजाम होता है ना ही किसी गाने बजाने का। ये बात नहीं, ये होश में नहीं है। इन्हें पता नहीं आपको राणा साहब गिरफ्तार किया गया था, बारात पे नहीं जा रहे थे आप। पूरे रास्ते में मुझसे छोटी कैंची मांगते रहे। आपसे छोटी कैंची? नहीं जी नहीं, मुझसे नहीं, छोटी कैंची। तो आगे भी बताओ, जब मैंने छोटी कैंची मांगी तो इसने मुझे कैंची चप्पल पकड़ा दी। सर, ये छोटी कैंची मांग क्यों रहे थे आप? एहतियात इलाज से बेहतर है। ये शबे जुबाबंदी है, रहे खुदाबंदी। लोगों की जुबानों पर ताले लगाना चाहते हैं और लोगों से कहते हैं कि बोलो मत, और कहते हो कि हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी ना करो। वे इतने गंदे गले के साथ इतनी भैड़ी बात, गला मेरा पता ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। इतनी मुश्किल बातें ना कर, सीधी बात कर। कजना खदिया गाजरा टेढ़ होना दे पीड़। तू यहाँ बैठकर कितनी बड़बड़ करता है, ऊट पटांग बातें तेरे आज दिन में सुनती रहती हूँ। अपनी बात कर, कितने जूते पड़े हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं तेरी। कभी किसी ने पूछा है तुझसे, तुम मुझसे दे मुंह वाले?
तो मेरी रिजर्वेशन तो जिस वक्त से ये चुनतखाब हुए थे, वो उस वक्त से मेरी ये रिजर्वेशन थी। और ये जो चुनतखब वुज़राए कराम, सर देखिए, चुनतखब वुज़राए कराम, हाँ, तो चुनतखब वुज़राए कराम ने भी, मैं समझता हूँ, पहले ही इंडिया दे दिया था कि ये विच हंटिंग करेंगे। अब विच क्या खीर पक रही है, ये आप वक्त इस बात का राणा साहब जरा तू ध्यान से। और ऐसा तू किस बात रहे है कर रहे इनकी बातें सुन के? नहीं आपा वो डर, नहीं तुझे नजर नहीं आता ये क्या कह रहे? रस्सी सड़ गई पर बाल नहीं गए, गिरफ्तारी हो गई, जुबान वैसी चल रही है। नहीं बात करने की कोशिश ना कर। अच्छा। क्या तेरा दिमाग नहीं है? इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की, मैं बात करूंगा तू कहेगी अपनी बात कर रही है। आपा मेरे बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा, सारे मीडिया ने देखा और सबने तू की है। लेकिन आप तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, जब से आप आई हैं मीडिया के साथ ताल्लुकात शानदार हो गए हैं। इतने थोड़ दिली, इतने कम ज़र्फ, इतना छोटा दिमाग तेरा, तुझे मेरी एक ही खिदमत नजर आई है कि नहीं बात सुन मेरी, मेरे हजारों काम है। एक मीडिया जो तेरे फायदे की बात थी वो तो तुझे अच्छी लगी है आपा, बाकी सब बातें तो भूल गई है। नहीं आपा, हमें तो आप अच्छी बात लगती हैं। इतनी दबंग खातून है, अपने मुखालिफिन के सामने डट कर खड़ी होती है और तड़ तड़ जवाब देती है। ये तड़ तड़ जवाब सिर्फ कलाशनकोफ देती है, और ये फायरिंग है जो गैर कानूनी है। जी जी आयशा, ये सब कुदरत की देन है, खान साहब की गाइडेंस है, इनसे ये हजम नहीं होगा, टेढ़ पीड़ होती रहेगी, लेकिन आपा के पाँव में कभी लग्जश नहीं आएगी। इन नीचे क्या देख रही है? सड़ती है जूता देखकर, मैंने मुहावरा बोला है। जी, तो फौरन नीचे देखने आएगी। तेरे पास कहाँ नसीबों में ऐसे जूते और कपड़े? आपा माना कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन थोड़ी सी आप ड्रेसिंग सेंस चेंज करें ना, कि फूलदार कपड़ों से अगर आप सिंगल कलर्स पहनेंगी ना तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। मुझे ड्रेसिंग सेंस के ताने दे रही है, अपनी तरफ देखा कौन सा रोग लगा बैठी है, इतना सड़ा रंग पहना हुआ है तूने। आपा और किस किस को मूंछों से पकड़ कर घसीटेंगे? और जिन की मूछे हैं सबको डालेंगे, और जिनकी मूछे नहीं है उनको बालों से पकड़ कर घसीटेंगे। और जिसके बाल ही ना हो वो उनको गिरबान से पकड़ कर घसीटेंगे। और जो खाली बनान में फिर रहा हो वो। सर आपने तो पहले ही बता दिया था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको कैसे पता था? वैसे सर वाकई आपने बहुत से सहाफियों को ये इंदिया दे दिया था। ये पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। वाइब्स? मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। अच्छा। और मुसलसल मुझे ऐसी जगह पे खारिश आ रही थी जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। तो मैं समझ गया था कुछ पुठा होने वाला है। मुझे क्या मालूम था कि मैं ही पुठा होने वाला हूँ। सर वैसे इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें आपका दबंग स्टाइल बहुत पसंद है, लेकिन इतना दबंग के खुलेआम गाड़ी में। और 2 शॉपर मेरी फ्रंट सीट के नीचे थे और 2 शॉपर साथ वाली सीट के नीचे थे। क्या? और 2 शॉपर डिग्गी में रखे हुए थे। कन्फेस कर रहे हैं? और इन 6 शॉपरों के अंदर पापे थे। पापे? जो मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखे थे। मुझे क्या पता था पापों पे ही छापा पड़ जाएगा। तो अगर मैं दबंग होता कि जैसी कि मैडम खुद नजर आ रही हैं जी, तो मैं तो कहता छापों से डर नहीं लगता साहब, पापों से लगता है। सियाने कहते हैं पापे पे छापा पै गया स्यापा। आशा 1000 बातें करेंगे, मेरी आंख फटक रही थी, कभी कहते मेरे खारिश हो रही थी, सीधी बात नहीं करेंगे। जो करते होते नजर आ रहा था यही होना है। मुझे बताओ जैसे काम होते हैं वैसे ही नतीजा निकलता है। आपा लेकिन ऑपोजिशन तो चीख चीख कर कह रही है कि ये सियासी इंतकाम है। कैसा सियासी इंतकाम है? हम इनसे इंतकाम लेंगे? क्या इस काबिल है बेचारे? ये तो खुद मरे मुक्के हैं, क्या इंतकाम लेना इनसे? राणा साहब हर सियासतदान पकड़े वजन के बाद एक क्यों हद कि सारे को सियासी इंतकाम की दावेंदा पे? सियासी इंतकाम से तो वो डर नहीं लगता।
अच्छा। वो जो है वो जितना चाहें ले लें। डर लगता है जुस्मानी इंतकाम से। और राणा साहब आप तो बहादुर आदमी हैं, आपने तो ये जिस्मानी तशद्दुद झेला हुआ है, डर किस बात का है? उम्र के इस हिस्से में चंद हिस्सों पे तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि गोडे हैं, गिटे हैं, मोडे हैं जी, वखियां हैं, सखियां हैं, वखियां हैं, सारी वखियां हैं। तो वो जुस्मानी तशद्दुद भी बर्दाश्त किया जा सकता है, जुस्मानी, लेकिन जज्बाती तशद्दुद मैं समझता हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा जज्बाती सकता। तशद्दुद? ना घर से रोटी आ सकती है, ना कोई लव लेटर आ सकता है। लव लेटर? अपने लीडर को ना लव लेटर लिखा जा सकता है। अच्छा। शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो। अब इनको सारे इंतकाम याद आ रहे हैं, खुद इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सारे ये काम करते रहे। ये खान साहब का धरना था, आपको पता है, अभी तक केस बने हुए, कभी जेलों में डाला, कभी मार कुटाई की। ये होता है सियासी करते रहे राणा साहब। आज हमने सवालात का हल निकालना है या हवालात का हल निकालना? आपा, चश्मा जमालियाती ज़ौक़ का आईनादार होता है, आप इसे बदल क्यों नहीं लेती? नहीं, मैंने तो अपने मुताबिक लगाया हुआ है, तो अपनी फिक्र कर। इतनी सी बुद्धि पे इतने बड़े शीशे लगा के बैठी, ऊपर वाइपर पर भी लगा ले। आपकी स्टाइल है। फिर मुँह ऐसे स्टाइल पे जो अच्छा ही ना लगे, देखने को दिल ना चाहे, लगती स्टाइल की। सर मुझे ऑनेस्टली एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि ये मनशियात का केस वजह बना है आपकी गिरफ्तारी की, या आपकी तुर्श बातें? ये सवाल तो आप किसी मेंटल हॉस्पिटल के एडमिट शुदा मरीज से भी पूछते तो मैं समझता हूँ वो भी बता देता। क्या? कि यस। यस व्हाट? जो पूछा आपने। सर मैंने पूछा कि आपकी बातों की वजह से आपको जेल हुई है या मुनशियात की वजह से? यस। सर क्या यस? यानी बोलने की वजह से मुझे अंदर किया गया है। अच्छा। और केस मुझ पे मनशियात का बनाया गया है। तो वो दोनों बातें हैं, इसलिए यस कह रहा हूँ। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी है। 92,000 लोगों ने इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। अहदाफ पूरे हुए हैं या नहीं, सुनते हैं एमएफ मजीदी, AR रमजान और उनकी बॉस। अच्छा वैसे तुम्हें पहले मेरा नाम लेना चाहिए था। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारे सिर में बाला मारूं, तुम्हारी आंखों के आगे तारे हैं, छोटा सा पहिया घूमे, तुम बचपन में चले जाओ, गली में खेल रही हो, तुम्हें डाकू उठा के ले जाएं। इससे बेहतर है कि तुम मेरा नाम याद कर लो, AR रमजान। पहले कहना तुमने। पहले तो ये कोई तरीका नहीं है। तू तड़ाक क्या होता है? मैं आपसे आप करके बात करती हूँ। नहीं मैंने तू कहा है ना। आपने क्यों कहा है? नहीं, तू तड़ाक करने से मोहब्बत बढ़ती है आपस में। आपका दिमाग तो ठीक है? नहीं, वो कहती नहीं है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बकवास है ये? पहली गांव फिर जो उन्हें ये बात ही कहीं और निकल गई। आयशा जी खुद ही आप इन्हें दावत देती हैं और वो आपका तमस्खुर उड़ाते हैं। सच्ची बात है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? आप तो खिलखिला के हंस रहे होते हैं इनके साथ। मैं कहा जे तुसी आपस च लड़ना होंदा ते सानू मैंगो लैन ਲਈ बुलांदे हो इत्थे। बुलांदी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। याद रख, फुल्ला वाला सूट पाने ਨਾਲ कोई फुल नहीं बन जाता। मैडम फूलों वाला सूट तो आपने भी पहना है। या फुलनी ना बनी, खाली टहनी बन गई है। इनकी कुड़ी दी सहेली जल्दी जल्दी ब्याह कर लेंदी। क्यों? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ बनना है। अच्छी बात की है, दो फेरे बंदवा। मजीदी साहब डेडलाइन में तौसी सिर्फ 3 दिन की हुई। आपको नहीं लगता अगर ज्यादा दिन की तौसी होती तो ज्यादा लोग फायदा उठा सकते थे? ओ 3 दिन बड़े होंदे ने रोवे मजीदी। 3 दिन दी सेल लगी होवे ना ते गुत्तां पुट देंदियां एक दूजे दियां, पहुंचे पाड़ देंदियां एक दूजे दियां, शटर तोड़ के जो आता वे चुक के ले जांदियां। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर की 1 दिन की जिंदगी सेल की 3 दिन की जिंदगी से बेहतर है। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ 110 ਦੇ 3 ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और छड्डो तू एनू ए दस कि शेरनी दी एक दिन दी जिंदगी शेर दी 100 साला जिंदगी तो बेहतर है। ते साडे ना शेर नहीं होवे ते दसी ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਲਈ ਫਿਰਨੇ। मुझे तो लगता है इन तीनों का दिमाग खराब है, जो मुंह में आता बोले चले जा रहे हैं। ते उठा तिना नु इथों कली ब्याह कर दूं। वो आप तीनों की बात कर रही हैं। थैंक यू आपका, अगर आपने तुम कहा होता ना फिर मैं वही समझता हूँ। रमजान साहब 42 अरब इकट्ठे किए आपने, पिछले साल इससे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए थे। नहीं, पिछले साल तो मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, मैंने और मजीदी ने मिलकर प्लान बनाया था। हम ना दोनों जो है ना मिलकर लोगों के घरों में खुसरे भेजते थे। हाँ, वो वहाँ पे नाच नाच के टैक्स इकट्ठा करते थे। आप यकीन करें उन पे वेलें इतनी होती थी कि 42 अरब से ज्यादा इकट्ठा हो गया। सर पिछले साल तो कोई एमनेस्टी स्कीम भी नहीं थी, फिर भी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे। हाँ, तो इस साल अभी दी है ना स्कीम, लोग आएंगे जोक दर जोक आएंगे इधर लोग पैसे देने के लिए। अगर नहीं आएंगे तो मैं उनको निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे आपने? ऐसे चलो निकलवा चलो। और नाल पिछली यारी है हुकूमत नहीं सी रहेंगे जेड़ी ऐतकी है। नहीं, पिछले साल तो वर्ल्ड कप भी नहीं हो रहा था ना, इस साल तो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो वर्ल्ड कप का एमनेस्टी स्कीम से क्या ताल्लुक? नहीं, लोग स्कीमों में कहाँ जाएंगे जब टीवी पे मैच चल रहा होगा लाइव है। उतो मैच हार जाए दा दिल टूट जाता, अगले सोना कंबल लेके सो जाते एसी ला के। मेरी आप तीनों से ये गुजारिश है कि जिस वक्त आप यहाँ से जाएंगे अपना अपना हेपाटाइटिस का आपने टेस्ट कराना है। क्यों सर? बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, नहायत गंदे हैं, नहायत ही गंदे हैं। ये जितने पैप लगे हुए हैं पानी वाले, रंग बीच में है, और उससे मुझे अंदेशा है कि सारे ही आप भी हेपाटाइटिस का टेस्ट जरूर करवाइए। मजीदी साहब, कुछ लोगों ने तो एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया, लेकिन जो लोग इस लालच में नहीं आए उनसे उनके असासे कैसे उगलवाएंगे? तुसी लेना अधपा गुड़, गुड़ आधा किलो पानी च ओनू भिगोना, जरो इंज पक के काड़ा जिहा बन जाना ते इको डीक च पी लेना ते ठीक 15 मिनट बाद संग चुंगल मारनी है, सारा कुछ उगल के बाहर। मैं काले धन की बात कर रही हूँ। नीला काला पीला जेड़ा भी है बाहर आइएगा। शहरी ये झूठ बोले जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੜਸ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨਾਲ। तुम पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम से उठा के बाहर फेंक दूंगी, डफर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਸੀ ਆਂਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं, कोई मुश्तरका नहीं होता, मैं उठा के बाहर फेंकूंगी तुम्हें। नहीं, चौधरी बनी है तू भाई, बहुत हुंदी है। और मैं हूँ चौधरी, क्या मसला है तुम्हारा? देखो सांझे वेड़े का यही रफड़ होता है, आज आप सफाई कर दे कल वो कर देगा, कोई मसला नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, लड़ाई माफ करें, देखें कुछ ख्याल करें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई चौधरी नहीं है, ये नया पाकिस्तान है और मैं समझता हूँ लड़ाई बंद करें जी। मेरी तरफ से आप सारे बराबर हैं, सारे मरासी हो। रमजान साहब, 330 बिलियन का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, कैसे पूरा करेंगे? नहीं, देखिए हमारी टीम के साथ अक्सर मसले यही रहता है। हमारी टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाती है वहाँ भी शॉर्ट बॉल, जब साउथ अफ्रीका जाए शॉर्ट बॉल, न्यूजीलैंड में जाए शॉर्ट बॉल, या हमारे यहाँ मसला आधी सीमेंट की विकेट बनाते हैं, आधा मिट्टी रोड़ा होता है, इसलिए उनको सारी जिंदगी शॉर्ट बॉल खेलनी नहीं आती। और मिट्टी रोड़े में शॉर्ट फॉल की बात करें, शॉर्ट बॉल की नहीं। अच्छा, वो वाला शॉर्ट फॉल। हाँ, और केड़े शॉर्ट फॉल दी गल कर दी है? तू नियाग्रा फॉल देख जाके। अभी भी आप नायाग्रा फॉल देख रही है, इसलिए तो हमें शॉर्ट फॉल देखना पड़ रहा है। नहीं, शॉर्ट फॉल के लिए हमारे पास ना बहुत ज्यादा आइडियाज हैं। क्या वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ कि इस मुल्क में 16 mm से ज्यादा जिसकी मूछें हो ना, 16 mm से ज्यादा मूछें, मोटी मूछें जिसकी हो, उसमें टैक्स लगना चाहिए। और ये जो लड़के यूं करके बाल लगवाते हैं ना आजकल, हेयर ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, हाँ जी, जो लगाते हैं उन पे भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये फितरत के साथ छेड़छाड़ कर रही है। पर आपकी अपनी मूंछ भी 16 mm से ज्यादा है। हाँ, तो अभी तो टैक्स नहीं ना लगा, जब टैक्स लगेगा मैं इसको 4 mm कर दूंगा, 2 mm इधर 2 mm इधर। एक बंदे नु ते छोटियां कराने दा मौका भी नहीं मिले, अगले ने चौक के अंदर दे दिता। गल सुन, बड़े तेनू हासे चढ़े ने, केड़ियां खुशियां ने? मतलब आपको शायद लोगों को दुख में देखकर खुशी हासिल होती होगी, मतलब हम कोशिश करके हंसते खेलते रहे। मैं भी खुश रहनी हाँ, दुखी ते अगले होंदे ने, प्लाजे बेच के जमीना बेच के मेरे पीछे। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ मेहमान नहीं लगती, ननान लगती। बीबी, जब भी तुम प्रोग्राम में आती हो तुम्हें अपने इश्क याद आने लग जाते हैं। कितने उत्साह हैं आपके। मेरे नाल मत्था ना नहीं, तेरे सारे कोट विक जाने ने, गले च सिर्फ टाई रह जानी है लोगों के खिंचन वास्ते। और मोहतरमा अपने जलवे दिखा दिखा के कितने आशिकों का काला पैसा सफेद करवाया है।
वो जलवे हो के अंदर इंजन दिए थे। ये जलवे नहीं दिखाती, सिर्फ अपने एक्सरे दिखाती है, लोग मदद करके निकल जाते हैं इसकी बस। गल सुनो, शब्बर दा की बनया जेड़ा अपनी ब्लैक मनी मेरे वाइट हत्थां दे उत्ते रखदा सी? ਉਹ ਸ਼ੱਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। क्यों? ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। इनके पीछे? हाँ। नहीं ये पीछे नहीं, गड्डी दे थल्ले। हाँ है बाजी, इको देख के लगदा था नहीं ये लोग ना काला पैसा सफेद करन दिया सी, बल्कि सीधा गायब करन दियो सी। देखो अगर तुम क्रीमें लगा के अपना रंग सफेद कर सकती हो तो हम लोगों को लारे लगा के उनका काला धन सफेद नहीं कर सकते? आशा जी मिनिस्ट्री स्कीम ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ क्या? ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ही नहीं हो। ये शुक्र करो तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे लड़के नहर पे खड़े होके कह रहे होते सर प्लीज कैंपस। मजीदी साहब, मुल्क की तारीख में पहली बार फाइलर्स की तादाद 20 लाख हो गई, मुबारक हो। लेकिन 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 20 लाख फाइलर्स, शर्म की बात नहीं है? शर्म मैं मंजीरा के ना रहे हैं। नेस्टी स्कीमा दे विच बंदों को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। डफर ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੰਡਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। क्या बोला तुमने? संडा एक ना सेकंड। कटना, छप्पड़ दा कसूर कड्डी जाना। बात तुमने क्या बोले? ये हाँ जी। पता नहीं कि एक सेकंड, इंग्लिश में कुछ बोल चुप करो। तुमने क्या बोले? ਉਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ कोई ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ। बहना भरावा विच नहीं। ਫੁੱਲ ਬਦੀਦ, क्या बोले? ਫੁੱਲ ਬਦੀਦ। हाँ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਦੋ ਦੀ क्या बोले तुम? नहीं ये तो बगैर थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अपनी बहन के घर जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 2 किलो आम लेके आता हूँ। तहजीब इंसान। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕਰ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਵਾ ਦੇ। मैं आपसे कह रही हूँ रिमेन इन योर लिमिट्स। लेबर सीन क्लोज एंड न्यूअर्स। व्हाट? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, टेक इट इजी। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।